ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था पैराग्राफ के हवाले से. वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट पैराग्राफ, सम डिटेल्स वर डिस्कस्ड, important factors were discussed, important parts were discussed, and a pretty well discussion took place in the previous class. And today what we are going to do, we have some more information about paragraph writing, which we will be discussing in today's class. Okay, students, now I have prepared few things in the shape of questions. The very first question, what are the main types of paragraph used in writing? So you know very well, yesterday, in the previous tutorial or the class, we discussed that there are 4 types of paragraph. Number 1, descriptive. Number 2, narrative. Number 3, expository. And number 4, persuasive. If we talk about descriptive, aims to create a vivid picture of a person, place or thing in the minds, in the reader's mind. So it means this is basically you are going to elaborate, you are going to describe. Narrative tells a story or recounts an event, usually in chronological order. You tell something in sequence, but in the form of storytelling, like visit to a historical place, last day at school, the days of an accident which took place. So it may be in these shapes, and you are supposed to tell or represent or write it or draft it in the shape of a storytelling. When we talk about expository, intended to explain a topic, provide information or clarify a process. ये process को clarify करता है. For example, जैसे कल हमने एक discussion की थी कि किसी भी process, अगर आप कहते हैं how does computer work, the working or the function of a computer, तो आप इसको elaborate करते हैं. The functions of a combustion engine, आप कह सकते हैं you are going to talk about, आप सोलर सिस्टम पे बात करते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्किंग करता है, लाइक दैट. तो इसमें क्या होता है कि आप किसी प्रोसेस को एलेबोरेट करते हैं, ठीक है. और आखिरी में आ जाता है हमारे पास बेटे परसुएसिव पैराग्राफ. परसुएसिव में क्या आता है, एम्स टू कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन. आप क्या करते हैं कि आपकी इसमें कोशिश ये होती है कि आप रीडर्स को या पढ़ने वालों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड. आगे चलिएगा. अब बेटे हम बात कर रहे हैं, इज देयर अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर हाउ मेनी सेंटेंसेस शुड बी इन अ पैराग्राफ. दैट इज, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उस वक्त जब स्टूडेंट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पैराग्राफ राइटिंग से मुतालिक. अगर पैराग्राफ राइटिंग से मुतालिक अटेम्प्ट ना भी करें तो जो भी रिटन ड्राफ्ट आप तैयार कर रहे होते हैं उसकी डिवीजन आप पैराग्राफ में ही करते हैं. तो अब इस सवाल का जवाब ये बनता है कि नो, देयर इजंट या देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ. One thing, a good paragraph is defined by its focus on a single complete idea, not its length. The most important thing which you are supposed to keep in your mind should be that you must take care about the theme and idea which you are representing, which you are bringing under your pen, which you are penning down. That should be complete within itself. It should be sticking to one theme and idea. But it is not about how many sentences you are writing. Basically, it is how you are writing about some particular topic. This is. But one thing you have to keep in your mind, generally a paragraph in academic writing contains between 3 and 8 sentences. Can be 3, can be 8 sentences, but this is rough and ready figure. The key is to ensure the idea is fully developed without becoming too long or losing focus. Basically, you have to, when you complete your paragraph, you are supposed to check. You have to assess, you have to evaluate, you have to observe whatever you wanted to write about some particular idea or theme. Is it completed within itself or not? Or is it satisfying you or not? Right after proofreading. Next question, bete. How do transition words make a paragraph more coherent and readable? That is something very important. Basically, when you talk about a poor or a badly organized paragraph or drafting, mostly when the students of school and colleges, they attempt some written stuff. That might be any subject, but if you talk about from English point of view, the mistake which is time and again pointed out, that is of but and or. Most of the students, they keep on writing sentences which are very lengthy. There isn't any break, there isn't any chain. So if you would like to maintain the flow of your thoughts,
If you would like to connect your sentences in a well organized way, then you are supposed to take the support of transitional devices like transition words and phrases like however, therefore, in addition, for example, act as bridges between sentences and ideas. They create a logical flow by showing the relationship between one thought and the next. This helps the reader follow your argument smoothly and understand how your supporting details connect back to the topic sentences, significantly improving the paragraph overall readability and coherence. Yes, what it means basically, स्टूडेंट्स जब एक आम रीडर या आम राइटर को देखा जाता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने सेंटेंसेस के तसलसल को या फ्लो को ख़त्म ही नहीं करना चाहता। सेंटेंसेस जितने लंबे होंगे, मिस्टेक्स के और एरर्स के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, बजाय बट एंड और के एंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एक्सेसिवली। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको सबसे पहले जो ट्रांसलेटर डिवाइसेस है इस पे कमांड करना जरूरी है। ना सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, बल्कि आप अगर ऐसे भी लिख रहे हो तो अगर आपके स्टार्ट होने वाले कई सेंटेंसेस जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप ट्रांजिशन डिवाइसेस का सपोर्ट ले लें, मेरा ये ख्याल है कि जो चार्म उसमें लूज होता दिखाई दे रहा है, जो आपकी पैराग्राफ की राइटिंग की खूबसूरती तबाह हो रही है, वो तबाह होने से बिल्कुल बच जाएगी। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ व्हाट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ये क्या करता है कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के अंदर जब आप अपने फ्लो को कायम करना चाहते हैं, ये इस फ्लो को कायम रखता है और मीनिंग को भी काफी हद तक स्टेबल रखता है। आगे चलिएगा। अगला बेटा, when is it appropriate to use the first person perspective I in a paragraph? देखिए बेटे, ये भी बड़ी जरूरी बात है कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो किस हद तक ये एक सही रूल है या एक सही आइडिया है या एक सही सोच है कि भाई मैं आई को इस्तेमाल करूं, किस हद तक या किस जगह पे इसको लगाना मुनासिब है। इसको देखते हैं। कहते हैं यूजिंग द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव आई is appropriate in certain contexts। कौन से? It is perfectly acceptable in personal narratives। अगर बात आ रही है आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से, तब तो आप उसको डाल सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। फिर कहता है रिफ्लेक्टिव एसेज, ओपिनियन पीसेज, अ जर्नल entries where you are sharing your own experiences or viewpoints। जब कभी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, व्यू पॉइंट्स को, आइडियाज को शेयर कर रहे हो, तो ज्यादातर राइटर के करीब, अच्छे ग्रामरियन के करीब ये अप्रोप्रिएट है। ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, इसको लगाना बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रख दी। लेकिन however, in formal academic and scientific writing, it is generally best to avoid I to maintain an objective and authoritative tone। देखें, जब आपको एक जनरल पैराग्राफ लिखने को मिलता है तो बेसिकली उसमें आई को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है। बेसिकली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको थर्ड पर्सन में लिखें, या जिस टॉपिक को आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की बात है तो इट की आ रही है, अगर किसी शख्स की बात है तो ही या शी का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कह सकते, अगर आप बात करते हैं, आपके कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिसमें आप किसी की शनाख्त आने नहीं देते, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर लगते हैं। व्हाट आर दोस प्रोनाउंस? बता सकते हैं वो कौन से प्रोनाउंस हैं? नो, पोजेसिव प्रोनाउंस में भी तो माई और देर आता है। एक प्रोनाउन ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जिसमें आप कह सकते हैं वन शुड डू, समवन, एनीवन, एनीबडी। तो आप क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट होकर बात कर रहे होते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आई का इस्तेमाल अगर पर्सनल या अगर आपकी अप्रोच जो है सब्जेक्टिव है तब तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर आई का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक थर्ड पर्सन बनकर बात करें। नेक्स्ट बेटी, अगली बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पैराग्राफ्स टॉपिक सेंटेंस, बड़ी बात कर रहा हूं, एंड एन एसेज थीसिस स्टेटमेंट। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब मैं आपको इससे पढ़ाऊंगा, दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई विल बी आस्किंग यू पीपल कि बेटे ये जो आपका एसे स्टार्ट हो रहा है एंट्री में, या जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसमें थीसिस स्टेटमेंट दीजिए। और बिल्कुल यही बात मैं जब आपको पैराग्राफ राइटिंग बढ़ा रहा हूं, उस लम्हे भी मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जब आप अपना पैराग्राफ का आगाज करेंगे तो आपने टॉपिकल या की सेंटेंस लिखना है। जरा देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। यानी टॉपिक सेंटेंस and the thesis statement both state a main idea, but they operate on different scales।
स्केल्स इनके डिफरेंट है। वो कैसे? अ टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ अ सिंगल पैराग्राफ। देखिए बेटे, जितने पैराग्राफ ज्यादा होंगे उतने टॉपिकल सेंटेंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिवाइडिंग योर रिटन स्टफ इनटू 10 पैराग्राफ्स, सो ईच पैराग्राफ विल बी हैविंग अ टॉपिकल सेंटेंस। ये तो होगी इसकी बल्कि सिंपल एलाबोरेशन कि हर पैराग्राफ में एक टॉपिकल सेंटेंस होगा और हर पैराग्राफ का टॉपिकल सेंटेंस सिर्फ उसी पैराग्राफ से रिलेटेड थीम के बारे में बात करवाएगा। लेकिन when you talk about, in contrast, a thesis statement presents the main argument or purpose of an entire essay or paper, and each paragraph's topic sentence should ideally support that overarching thesis। कहने का क्या मतलब है? यानी अगर 10 पैराग्राफ के अंदर 10 आपके टॉपिकल सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपका एस्से तो एक ही थीम पे, आप उसको लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, आपने कोई थीसिस स्टेटमेंट बनाई जो कि कोई फैक्ट्स पे मबनी हो सकती है, आप किसी की सेइंग को लिख सकते हैं, आप कोई साइंटिफिक कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसके हवाले से। अब जितने भी पैराग्राफ बने हैं उन सब का ताल्लुक इस एक से, तो साबित ये हुआ कि थीसिस स्टेटमेंट ओवरऑल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है और टॉपिकल सेंटेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब इन सब को आप कलेक्ट करें तो इन सब का ताल्लुक उस थीसिस स्टेटमेंट से ही होता है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अगला बेटा, What are some common mistakes to avoid when writing paragraphs for school assignments or colleges? मैं दोनों की बात करूंगा क्योंकि आपका कॉलेज सिस्टम जो हायर सेकेंडरी स्कूल जिसको कहते हैं ना, तो उसमें एफएससी भी आ जाती है। वो कैसे? जरा वो मिस्टेक्स जो आप पाई जाती हैं उनको देख लेते हैं। कहते हैं स्टूडेंट शुड बी केयरफुल टू अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स इन पैराग्राफ राइटिंग सच एज, आई मीन कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात, अनक्लियर टॉपिक सेंटेंस। आप जो टॉपिक सेंटेंस या की सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, या टॉपिकल सेंटेंस जिसको कहते हैं, जो पैराग्राफ की ओपनिंग के लिए एक बड़ा किरदार अदा करता है, उसके अंदर बेटे अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है या मैच नहीं कर रहा है या अप्रोप्रिएट ही नहीं है या वो अपीलिंग ही नहीं है, then rest of the sentences will not be appropriate or will not be appealing or attractive too। तो पहली बात ये, starting a paragraph without clear focused main idea। आप जब तक, मैंने कल क्या बात की थी, सबसे पहली बात है प्लानिंग करनी होगी। अगर आप प्लानिंग किए बगैर, प्लानिंग का 2 मिनट की प्लानिंग की जा सकती है, सोच सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं। आपका सेंटेंस ऐसा ना हो कि सुपरफिशियली और जल्दी की वजह से आपने कुछ भी लिख लिया। ऐसा होता है जल्दी में कि वी जस्ट जंप इनटू द टॉपिक, वी प्लंज, हम कूद तो पड़ते हैं without thinking that whether we are able to write down something about it or not। मैंने कहा बोलने में हम आर्टिफिशियल सपोर्टर्स ले लेते हैं, लाइक दैट, टाइम पास हो जाता है। लिखने में भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम किसी चीज को यूं ही लिख तो लेते हैं, लेकिन बाद स्टूडेंट्स में कटिंग कर रहे थे, बाद स्टूडेंट्स को काट के दोबारा कुछ लिखते हैं। इसका मतलब होता है यू डिड नॉट प्लान, और वो चीज जो प्लानिंग के बगैर लिखी जाएगी उस पर फोकस करना बड़ा मुश्किल है, उस पर लिखना बड़ा मुश्किल है। एक मिस्टेक तो ये है कि आपने जो टॉपिक सेंटेंस सिलेक्ट किया वो क्लियर ही नहीं है। दूसरी बात, इंक्लूडिंग मल्टीपल आइडियाज। एक ही पैराग्राफ में अगर आइडियाज मल्टीपल हो जाए, इसकी मिसाल तो मैं यूं ही कहूंगा बेटे कि इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेकिंग सम नेकलेस, आपने एक ही कलर के बीड्स लिए और उसका सीक्वेंस और कोहेरेंस और ऑर्डर बड़ा खूबसूरत जा रहा है, लेकिन आपने 2-3 अगर उसके अंदर जो पर्ल्स हैं या बीड्स हैं वो अनमैच्ड डाल दिए जो उस पैटर्न पे नहीं है, बन तो गया नेकलेस, but the beauty and the charm is lost। जो खूबसूरती और जो चार्म है, सीक्वेंस तबाह होगा। वो यही आपको समझा रहे हैं कि आप ट्राइंग टू कवर मोर देन वन सेंट्रल टॉपिक इन अ सिंगल पैराग्राफ। एक ही पैराग्राफ के अंदर, इसकी मिसाल यूं कह लीजिए कि आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं जिसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन उस क्लास के अंदर आपने मिक्सअप क्लासेस को बिठा लिया। क्या इन सबको फायदा होने वाला है? नहीं। ओनली दोज पीपल विल बेनिफिट, those who are concerned with some particular topic, rest of the people definitely will not be able to understand even a single thing। बिल्कुल ऐसे ही बेटे इनकी अफादियत या उनकी जो वैल्यू है बिल्कुल खत्म हो जाती है जब आप किसी एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल आइडियाज को लेकर आते हैं, क्योंकि पैराग्राफ की डेफिनेशन में आपने यही लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू सिंगल थीम और आइडिया। तो आइडिया और थीम एक होनी चाहिए। आगे देखिएगा बेटे, लैक ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स, मेकिंग अ क्लेम इन द टॉपिक सेंटेंस बट फेलिंग टू प्रोवाइड एविडेंस और एग्जांपल्स। कहने का मतलब तो ये हुआ, बात आप एप्पल की कर रहे हैं और आप इसके अंदर एप्रिकॉट की बात कर रहे हैं, पोमीग्रेनेट की बात कर रहे हैं, आप इसमें बनानास की बात कर रहे हैं, आप मिक्सअप चल रहे हैं, तो जो डिटेल्स आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कोई सफिशिएंट नहीं है। ये दो तरह से अगर कहूं तो ये और ये बात तकरीबन मिक्सिंग इस तरह है, एक जैसी इसलिए है कि ये इंक्लूडिंग मल्टीपल आइडियाज का मतलब यही है कि आप जो डिटेल्स दे रहे हैं वो मिक्सअप करके दे रहे हैं।
वो सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपके फर्स्ट आइडिया को। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप बात कर रहे हैं एजुकेशन तो एजुकेशन ही रखिए ना, अगर आप क्लास मैनेजमेंट की बात करें क्लास मैनेजमेंट की बात रखिए, अगर कंप्यूटर के फंक्शन पे बात करें कंप्यूटर फंक्शन पे बात करें। फिर कहता है पुअर ट्रांजिशंस, having sentences that are choppy and do not flow logically from one to the next। देखो बेटे, सेंटेंसेस का फ्लो कायम करने के लिए कंजंक्टिव एडवर्ब्स या पंक्चुएशंस का यूज भी किया जाता है, लेकिन जब आप एक बात करते हैं इट वाज गोइंग वंडरफुली हाउएवर वी मैनेज्ड इट इन पुअर कंडीशंस, अब मैंने सेंटेंस के तसलसल को नहीं तोड़ा। Perhaps they were not happy with the situation, they were not present in the class। तो आप क्या कर सकते हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स या ट्रांजिशन डिवाइसेस पर आपकी कमांड होना जरूरी है। आपको अगर 5 से 7 भी, अगर एक पैराग्राफ में 4-5 भी लगाएंगे तो बट एंड से आपकी जान छूट जाएगी। आखिरी बात क्या कहता है, नो कंक्लूडिंग सेंटेंस, ending the paragraph abruptly without summarizing or providing closure। देखो, एक बंदे ने एक गेम खेलना शुरू की, he started from level 1 और level 3 level 5, जब लास्ट लेवल आया उसने क्या किया, तमाम चीजें वहीं छोड़ दी और वो छोड़ के चला गया। तो इसका कंक्लूजन क्या समझ आया, ना वे हारे हुए में से है ना वो जीते हुए में से। बेटे इसी तरह आप किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने एक टॉपिक पे बात करना शुरू की, सराय में आपको एक चीज बताता है इसके फायदे इसके नुकसान, लेकिन आप आखिर में कहते हैं आप बताओ ना करना क्या चाहिए, जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी बात किया जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it helps us calculating things in a short span of time, it is made of so many components and it is being used in every sphere of life and no department is deficient of it, it is provided with it। So computer is the need of time, without computer things are getting quite difficult to reach their logical conclusion। लाया आखिर पे, जब तक कंक्लूजन सेंटेंस नहीं होगा आपके एसे के अंदर, आपके पैराग्राफ के अंदर, आपकी एप्लीकेशन इवन आपके लेटर के अंदर, बात कभी भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। आगे चलिएगा। Why is a strong concluding sentence crucial for an effective paragraph? मैं आपको बताऊं, for the people those who go through your written stuff, अगर कोई आपके written stuff को चेक करे मार्किंग में, दो चीजों को बड़े फोकस के साथ, बड़ी मेजरमेंट के साथ, बड़ी अटेंशन के साथ चेक किया जाता है। और पहली चीज क्या है, आपकी स्टार्टिंग, यहां से वो देखते हैं, थोड़ा सा सुपरफिशियली थोड़ी चीजों को देखने के बाद डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ आते हैं और वो इससे अंदाजा लगा लेते हैं इफ द स्टार्ट एंड द कंक्लूजन इज इफेक्टिव देन द सपोर्टिंग डिटेल्स विल आल्सो बी और वुड हैव बीन वेरी 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 इफेक्टिव। कि अगर जिसने लिखने वाले ने आगाज को और इख्तिताम को बहुत पुरअसर और मुअस्सर बनाया तो जो बीच में डिटेल्स है वो भी मुतासिर कुन होंगी। ये अच्छा बेटे, अब क्या कह रहा है, a strong concluding sentence is crucial because it provides a sense of closure and reinforces the paragraph's main point. It signals to the reader that the idea has been fully explored. By summarizing the supporting points or restating the topic sentence in a new way, it ensures the reader remembers the key message of the paragraph before moving on to the next one. When I talk about my English class, it is very informative. Without English, it's quite difficult to attempt any question comprehensively and effectively. We are being taught in a wonderful way. We are getting information and we are improving our knowledge. What I thought, without learning or without English, we are not able to draft our written stuff in a effective way. So that's why learning English is quite necessary in the present way. अब आप देखें किसको इख्तिताम की तरफ लेकर आया है, और इख्तिताम का मतलब क्या होता है कि अपनी बात को एक दफा फिर से किसी को अलर्ट करना, किसी को अटेंशन देना कि क्या बात की जा रही थी, क्या बात कहाँ से शुरू हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज का होना भी बड़ा जरूरी है, उर्दू में बात कर रहा हूँ, अगर माइंड को एक तरफ रखेंगे तो साउंड माइंड को, साउंड बॉडी को साउंड माइंड की जरूरत होती है। अगर एक ही तरफ मोनोटोनस एक्टिविटीज करेंगे तो काम चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज है कि फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना जरूरी है, वरना हम मेंटली तो फिट होंगे लेकिन अगर फिजिकली फिट ना हुए तो हम अपने कामों को पूरा सर तरीके से अदा नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कंक्लूडिंग। आगे चलिएगा। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ, प्रिंसिपल्स ऑफ
पैराग्राफ, इसको यहाँ तक रख लेते हैं। नेक्स्ट जब कल की क्लास में आएंगे तो इसको कंप्लीट करने के साथ एक पैराग्राफ का सैंपल भी लाऊंगा और इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक दैट। थैंक यू। बंद कर दीजिए।